تھوڑی پالیٹکس پہ نظر ڈالتے ہیں. جی سیاسی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں. ایک طرف حکومت جو کہ دعوے کر رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ معیشت سٹیبل ہو رہی ہے اور ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف بھی اپنا لائبل بنا رہی ہے اور مختلف طریقوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں پریشر کرنے کی, اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک جلسہ بھی منعقد کیا. یہ جو قیادت تبدیل ہوئی خیبر پختونخوا کی, اس تبدیلی کے بعد ہی ایک پہلا پاور شو تھا اور اس پاور شو میں مختلف آراء ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس تعداد میں لوگ نہیں آئے, لیکن دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایک سکسیسفل جلسہ تھا. پھر جلسے سے متعلق بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ فنڈز نہ ملنے کا شکوہ بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ایم پی ایز ایم این اے آئے. اچھا, دوسری طرف صورتحال یہ بھی ہے کہ یعنی باہر جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اس پر بھی ہمیشہ ہر ٹاک شو میں بات ہوتی ہے کہ کتنا انفلوئنس وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس پر. پھر ایک عدالتی معاملہ بھی چل رہا ہے, اس میں بھی دونوں طرف ظاہر دو پوائنٹ آف ویوز چل رہے ہیں, اپوزیشن کا اور حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر ایک کمبائن اپوزیشن کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو سینئر صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے واشنگٹن سے, ان سے ذرا ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم اویس صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو سرور, تھینک یو زہیب. اویس صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے دوسرے خط کی بات کر لیتے ہیں, جس میں انہوں نے آرمی چیف سے جیل میں ہونے والی بدسلوکی کی بھی شکایت کی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں 20 روز تک قید تنہائی بھی جھیلنا پڑی اور ڈیتھ سیل میں بھی انہیں رکھا گیا. اس خط کی کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے, ظاہر بات ہے کہ جو سیکیورٹی سورسز ہیں وہ تو اس بات سے لا علمی کا اظہار کرتی ہیں کہ انہیں کوئی خط موصول ہوا, پہلا بھی خط موصول ہوا کہ نہیں ہوا یہ بھی نہیں کہتی. وہ تو کہتی ہے کہ نہیں ہے یہ خط موصول ہوا. دوسرے خط بھی ظاہر بات ہے کہ سوشل میڈیا جو ایک بہت بڑا ویپن رہا ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا, میڈیا سیوی ہے, ینگ لوگ ہیں اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ 2013 سے 18 کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوئی ہے. تو وہ بہت ہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہی ان کا ایک ویپن رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستقل جو سوشل میڈیا پہ جو کنٹرول ہے, اور میرے خیال میں جو بادر کر رہی ہے, جو کہیں نہ کہیں درد سر بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بھی یا حکومت کے بھی, وہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت اسٹرانگ پریزنس یا فٹ پرنٹ ہے. کتنا سچا ہے, کتنا جھوٹا ہے, لیکن اب ایسا دیکھیں اس کی حقیقت تو یعنی چلیں ان کو موصول نہیں ہوا, لیکن ایک اوپن لیٹر تھا اور وہ جو 6 نکات پہلے خط میں تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کیا میسیجنگ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ کوئی کمپرومائز کرنے کی طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میں ایک اچھا میسیج دے رہا ہوں آپ کو پازیٹیو, تو آپ ہمیں رسپونڈ کریں, یا ادر وے راؤنڈ؟ نہیں, دیکھیے جو ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں جب سے ان کی حکومت فارغ ہوئی ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے رخصت ہوئی ہے, اس وقت سے وہ اس بات پہ ان کا اصرار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہی وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی ہی لیڈرشپ کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. اگر آپ کو یاد ہو اپنی گرفتاری سے پہلے بھی, اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ, اس کے بعد پھر نومبر کے جو لاسٹ ویک کے اندر جو بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا اسلام آباد میں, اس میں بھی ہائی ہینڈڈنیس کا انہوں نے بہت پرچار کیا تھا. اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے حکومت سے بات چیت کا سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے. اور وہ بھی یہ کہ جب تحریک انصاف, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جب یہ سمجھنے لگی کہ وہ کہیں نہ کہیں اس میدان کے اندر اکیلے ہیں, اور وہ مزاحمت جو ان کی وہ اس طرح کارگر ثابت نہیں ہو رہی, یا اس نظام کو وہ پلٹ نہیں پا رہے اپنی مقبولیت کے باوجود, اس میں تو دو رائے نہیں ہے جو ہے کہ وہ ایک مقبول ترین جماعت کے طور پہ ابھری ہے, تو وہ براہ راست مخاطب ہیں اور اس کے لیے کئی طریقے وہ رکھتے ہیں. کبھی بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ملٹری لیڈرشپ سے یا اسٹیبلشمنٹ سے, اور کہیں نہ کہیں وہ پیغام دیتے رہے ہیں حکومت سے. تو ان کی بات چیت دیکھیں نا 2 نکات پر ہے جو ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت چھوڑیں اور فوری فی الفور جو ہے وہ الیکشن کرائیں,
और इमरान खान साहब की रिहाई हो। अब ये दोनों ना हुकूमत के बस में है, हुकूमत ये करती है तो उनकी बाजी पलटती है, जी जी। और ना ये एस्टैब्लिशमेंट से उनको ये रिलीफ मिलता हुआ मुझे तो कम से कम नजर नहीं आ रहा। तो ये जो इस वक्त लेटर्स की जो भरमार है, ये दूसरा लेटर एक साथ आया है, उसमें उन्होंने अपने साथ जो ट्रीटमेंट है जेल के अंदर उसकी बात की है। जी। फिर मिलिट्री और अवाम के दरमियान दूरी का जो उन्होंने एक अंदेशा या एक खदशे का इजहार किया है, वो भी इस बात की गमबाजी करता है कि इमरान खान साहब कहीं ना कहीं एक अंडरलाइंड एक मैसेज दे रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि देखो मुल्क के अंदर जो सबसे पॉपुलर जमात है वो तहरीक इंसाफ है, और उसके अवाम जो है वो 8 फरवरी गुज़िश्ता साल जब इंतखाबात हुए तो कितनी मज़ाहमत के बावजूद वो निकले और उन्होंने वोट डाले। लेकिन और थोड़ा हमारी टोन डाउन हो जमात गए, थोड़ा टोन डाउन हो गए, थोड़ा सा, यानी ये कहा जा सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीर है ये क्या उनकी है, या उन्होंने 6-7 पॉइंट्स दिए हैं जो वकला उनसे मुलाकात करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू जेल के रूल्स के। देखें, जरदारी साहब 11 साल जेल रहे हैं, बेनज़ीर साहिबा जवालक साहब के दौर में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं AFP BBC में काम करता था, तो मैंने नवाज शरीफ साहब से जो इंटरव्यू किया था, जो उनका पहला, जब मुशर्रफ साहब ने उनके तख्ता उल्टा था और फौजी इनकलाब बर्पा किया था, लांडी जेल में लांडी थे। जेल, जी जी। तो मैंने उनके वकील के साथ मैंने कुछ सवाल भेजे थे, और ये मैंने शर्त रखी थी कि उनकी राइटिंग में ही जवाब आएंगे। तो मुझे जवाब आए राइटिंग में, और ये मैंने लिखा इंटरव्यू में कि तो वो 4-6 पॉइंट्स आना, इतनी बड़ी तहरीर, इतना बड़ा खत आना, जेलर तो इस बात की इंकारी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो मुखातिब इस्टेब्लिशमेंट से हैं और उनको पता है कि जो नाराज़गी है, जो उनकी जो सारी रिजर्वेशंस हैं, या इस्टेब्लिशमेंट जो कहीं ना कहीं उनको नरम नज़र नहीं आ रही, उनके तहरीक के बावजूद, ये 2-2.5 साल जो उन्होंने तहरीक चलाई है अपने हुकूमत की रुखसती के बाद, तो वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हैं, डायरेक्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब हैं, डायरेक्ट ISI साहब से मुखातिब हैं, और वो साथ में इन खतूत के साथ में ही शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत को, ये जो रूलिंग कोalition है, इसको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि देखो, मैं एस्टैब्लिशमेंट से ही बात कर सकता हूँ, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं इस तरह पैगाम दे दूंगा। राइट, वो तो कनेक्शन अपना वहाँ न्यूज़ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइए ओवैस कि अक्सर तज्जियाकारों का ये भी कहना है कि इस बार पाक अमरीका ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज़रा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? देखिए, बहुत सारे, कोई दर्जनों मैंने को इंटरव्यू दिए होंगे जब US इलेक्शन हो रहा था और ट्रंप साहब जो हैं वो यहाँ पे जीते थे। मैं खुद वाशिंगटन में हूँ, और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि 2021 में जो अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान से, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे वो फोकस नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमरीका के साथ कहीं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, नहीं। विंडोज़ खुली होती हैं ISI की, CIA की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, सिविलियन हुकूमत की, वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा खुले होते हैं, चाहे जितने भी ताल्लुकात ख़राब हो। इस वक्त तरजीहात के अंदर यूक्रेन वॉर है, मिडल ईस्ट पीस है, फिर सीरिया के बाद जो असद रजीम के फॉल के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई है वो है, और फिर टैरिफ्स की जो अब ऐसा, लेकिन चाइना भी तो है ना, तरजीहात में चाइना भी है, और चाइना है तो फिर पाकिस्तान भी है। टैरिफ्स की जो इम्पोज करने की बात है। देखिए, अब मैं आपको एक सही बात बताऊं कि इस वक्त अच्छा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत करीब नहीं है, और ट्रम्प साहब जो हैं वो चाइना की तरफ देख रहे हैं या मिडल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, और गजा की तरफ, गजा के टेक ओवर के जो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयानात दिए हैं, जिसपे पूरी मुस्लिम दुनिया से या इवन मगरबी जो इत्तेहादी उनके हैं वहाँ से भी उसके ऊपर रिएक्शन आया है। तो उसके वो इस वक्त अच्छा है कि रिडार पे नहीं है पाकिस्तान को ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर वक्त ही और रेलेवेंट हों और ज़बरदस्ती आप उनसे ताल्लुकात बढ़ा रहे हो। अभी आप देखिए कि कितने इंडिया से ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया की जो खबरें हैं, लेकिन 104-107 उनके कैदी यहाँ जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स थे उनको यहाँ से बाकायदा जहाज के अंदर पहुँचाया, और एक बहुत
ज्यादा शोर शराबा है जी जी, वो तो भारत के साथ। लोकसभा मुझे अवैध साहब ये बताएं कि कोई ट्रम्प किरदार अदा कर सकते हैं आपको आने वाले वक्त में लगता है? बानी पीटीआई के लिए कोई बेहतरी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प? लेटर्स तो आ रहे हैं उनके कैबिनेट। ज़ेब देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डायस्पोरा है वहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ अपने आप को रिलेट करती है या उनके सपोर्टर है। इमरान खान साहब के क्रिकेट के ज़माने से उनको आइडियलाइज करते हैं और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद है और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। फिर कोई ना कोई जो सेनेटर होता है या कांग्रेस का मेंबर होता है वो ट्वीट करता है या बयान देता है। अभी जैसे जो विल्सन ने कोई किया था तो वो बयान जो है क्या हकीकत में तब्दील हो जाएगा? नहीं, ये एक अंदेशा है, ये गुमान है तहरीक इंसाफ के चाहने वालों का, इमरान खान साहब के चाहने वालों का, जो ये इलेक्शन के ज़माने से उम्मीदें लगाए हुए थे कि ट्रंप आएंगे। नहीं भाई, ये तल्ख हकीकत ये है कि ये अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। ट्रंप की जो तरजीहात हैं वो 4 बड़ी तरजीहात हैं। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स का रोकना, डिपोटेशन, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे पैराग्वे हो, चाहे इंडिया हो या और दूसरे ममालिक के, दूसरा चाइना के साथ जो टैरिफ्स की वॉर चल रही है, और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है, पीस का जो मामला है, जो समझते हैं कि ट्रंप वो शायद वो हल कर पाएंगे और वो अपने आप को एक दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर मनवा सकेंगे। और यूक्रेन का भी मामला है तो उसकी तरजीहात में चले ये तो हो गई, उस तरह नहीं। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अभी देखिएगा ना, अभी आप फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अभी नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई पाकिस्तानी साहब ही पूछ लेगा, वो कहेंगे हाँ एक बयान दे देंगे। इसका मतलब है कि क्या इमरान खान साहब जेल से निकल यानी मटेरियलाइज उसको हाँ होते हुए आप अभी फिलहाल नहीं देख रहे। अच्छा, ये अब दोबारा जी गुमान है। अच्छा, अब इंटरनल जरा पाकिस्तान की दोबारा बात करते हैं, पॉलिटिक्स की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, काफ़ी अरसे बात किया, क़यादत की तब्दीली के बाद किया, और बानी पीटीआई अपनी क़यादत से पहले वाली क़यादत से कुछ नाराज़ भी, नाला भी दिखाई दिए। तो इसका मतलब है ये सिर्फ यानी वक्त गुजरेगा, जलसे होते रहेंगे, लेकिन कोई तब्दीली मुमकिन तौर पर ऐसे आने वाली है नहीं जैसे बानी पीटीआई चाहते हैं, अनटिल अनलेस उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात हो जाए। ऐसा ही वाज़ेह है ये बात। देखिए, अगर आप माजी करीब में जाएं, पीछे चले छोड़ दें कि 90 की दिहाई में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 3 साल में चली गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की हुकूमत 2 दफ़ा कैसे फारिग हुई, किस तरह रुखसत की गई, वो छोड़ दें आप। इस सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक न कहीं उसमें लेना देना रहा है। 2013 के बाद देख लीजिए, धरना हो तो आपको ये शवाहिद मिलते हैं कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। इमरान खान साहब उससे कितने 165 दिन के करीब वो इस्लामाबाद में धरना दिया। उसके बाद 2018 के जो इलेक्शन हुए जिसमें नवाज शरीफ आए 2013 के इलेक्शन में, उसके बाद कितना हंगामा हुआ, फिर एक पूरा उसको जाली उन्होंने करार दिया कि ये बोगस है। इसी तरह 2018 का देख लीजिए इलेक्शन, जिसके अंदर इमरान खान साहब मुंतखब हुए, वो आप देख लें, वो इमरान खान साहब कैसे आए, बाजवा साहब कितने करीब थे। एक पेज आपको पता है, बिल्कुल एक पेज, जिसका अभी भी तकरार कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ, कह रहे हैं कि इतना साथी जी लगता था, हाँ लगता था कि किताब जो है वो भी एक है, पेज भी एक है। अच्छा, अरे साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मौलाना साहब, एक बस मुख्तसर सवाल, मौलाना साहब अगर मिल जाते हैं ग्रैंड अलायंस से, तो क्या ये सिग्नल है कि एस्टेब्लिशमेंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रही है? क्योंकि मौलाना साहब अगर कहीं जाते हैं और अपनी पूरी कुव्वत के साथ अगर वो अमली तौर पर उतर आते हैं मैदान में, तो ये इससे एक सिग्नल मिलता है कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई। ऐसा है? नहीं, मैं देखें, ये प्राइम टाइम के अंदर जो है ये गुफ्तगू के अंदर लोगों का ख्याल हो सकता है, लेकिन जितना मैं मतलब 3 दिहाइयों से तो मैं जर्नलिज्म के अंदर हूँ या जो थोड़ा बहुत देखा है मैंने, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इंसिडेंट हो जाए, गॉड फॉरबिड कोई बड़ा कोई ऐसा हो जाए रोनुमा, उससे कोई तब्दीली आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम
जो है ये ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे वो हुकूमत की लेजिटिमेसी कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, ये मैं और आप बहस कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग है 9 मई के बाद, और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है 26वीं तरमीम के बाद एक्सटेंशन का मसला या तकर्री का मसला तकरीबन हल हो गया है, तो वो भी एक लंबी मुद्दत के लिए जो है वो लीडरशिप है, आर्मी चीफ जो है वो हैं इस वक्त, और इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं कुछ हमें बेहतरी के आसार लग रहे हैं जी। इस वक्त। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम बदल रहा है, बिल्कुल इसमें जो दो बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रही हैं, जो शायद कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त बड़ा हर्डल है। एक तो है कहीं ना कहीं खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पे भरपूर किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत ही खतरनाक किस्म के जो लॉज, पीका लॉज वगैरह का जी इतलाक जी जी बिल्कुल करने की कोशिशें हैं, जिस पे हम सब लोग नाला हैं, हम सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप सोशल मीडिया या मीडिया को केज करने की कोशिश करें। आप मीडिया के अंदर अपनी जगह स्पेस क्रिएट करें। बिल्कुल जर्नलिस्ट बरादरी इस पे एहतजाज किया। अवैस तोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और अब अगली जब हमारी नशिस्त होगी तो उसमें और उसकी बहाली और ये जो सिस्टम ऐसे चल रहा है ये कब तक ऐसे चल सकता है, इस पर हम जरा आपसे आपका तज्जिया लेंगे और तजुर्बे से फायदा उठाएंगे। जी जी वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया ओवैस तौहीद ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।